Good morning to all of the students. Today we will talk on the validity and its type. First of all, we will know what is the meaning of the validity. Validity is the extent to which a test measures what it is supposed to measure. Validity means to accuracy, how much accurate the thing is. This is told by the वैलिडिटी. अर्थात कोई चीज़, कोई प्रोसेस कितना एक्यूरेट है, सही है और कितने अपने उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है, ये हमें वैलिडिटी बताती है. वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच ए मेज़र व्हाट इट क्लेम्स टू मेज़र. अर्थात वैलिडिटी वह बताएगी कि कोई भी मेज़र या कोई टूल जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसने कितने हद तक या किस सीमा तक उसको मेज़र किया है, उसको मापा है. वैलिडिटी इज़ द कोरिलेशन विद सम आउटसाइड independent criteria. As we see, correlation is given here, and first we take the new test and we get the scores. Then we take the second test and we get the scores. Now we make a comparison between the two tests. First test is showing the high and positive correlation is found, and it means the test is valid. When other standard test, when other score is saying that the correlation is low and negative, that it means test is not valid. It means if we take the test 2 times and first time we get the score, that is, and the second and it is correlated in a high manner, that it is valid, and the second time if the score is low and negative, the test is not valid. Now we come to the types of validity. Although there are many types of the validity, but the main types of the validity are content validity, criterion validity, construct validity. In content validity, item validity is there and the sampling validity there, and in criterion validity, predictive validity and concurrent validity is there, and in the third category, when we talk about the constructive validity, it is convergent and the validity, and the second is discriminant validity. What is content validity? When a test is constructed so that its content measures what the whole test claim to measure, the test is said to have a content validity. जब एक टेस्ट बनाया जा रहा है और टोटल कंटेंट्स के सारे पॉइंट्स को उसमें ले लिया गया है, अर्थात उसमें इंक्लूड कर लिया गया है और उन सारे कंटेंट्स पर ही क्वेश्चन बना लिए गए हैं और वो उनको मेजर्स कर रहे हैं, तो इसको हम कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं. सो इट इज़ कंसर्न विद द रेलेवेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द आइटम. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो कंटेंट वैलिडिटी है, ये कंटेंट में जो आइटम्स हैं उनके उस टेस्ट में क्या प्रासंगिकता है, अर्थात किसने हद तक लिए गए, किस एक्सटेंट तक वो कंटेंट पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इसको हम कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं. कंटेंट वैलिडिटी में सबसे पहले आता है आइटम वैलिडिटी. आइटम वैलिडिटी इज बेसिकली कंसर्न विद द वेदर द टेस्ट आइटम रिप्रेजेंट measurement in the intended content area. It means हम बेसिकली आइटम वैलिडिटी में ये ज्ञात करते हैं कि जिन आइटम्स को हमने लिया है वो हमारे कंटेंट के एरिया को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं या नहीं. यदि वो हमारे कंटेंट के एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, अर्थात जो हमने
उससे बाहर ले लिए हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारी आइटम वैलिडिटी जो है वो प्रासंगिक नहीं है, अर्थात आइटम जो है वो ठीक प्रकार से नहीं बना है। दूसरी है सैम्पलिंग वैलिडिटी। इट इज़ कंसर्न with the extent to which the test samples the total content area, अर्थात टोटल कंटेंट एरिया से जो हमने सैंपल लिए हैं, क्वेश्चंस लिए हैं, आइटम्स लिए हैं, वो पूरे के पूरे कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर knowledge of psychology might have a good psychological fact, but might have poor sampling validity. That is, all its item may deal only with abnormal psychology. But when tests cover all the branches of the psychology, then it has good sampling validity also. यदि किसी एक पार्ट को, अर्थात साइकोलॉजी के विभिन्न पार्ट हैं, विभिन्न आयाम हैं, यदि उसने एबनॉर्मल साइकोलॉजी पर ही पूरा का पूरा क्वेश्चंस बना दिए हैं और जो पार्ट है साइकोलॉजी के वो रह गए हैं, तो इसका मतलब है सैम्पलिंग वैलिडिटी इज नॉट करेक्ट। नाउ द सेकेंड क्राइटेरिया इज क्राइटेरियन वैलिडिटी. It is one which is obtained by comparing the test score with the scores obtained on a criterion available at present or to be available in the future. अर्थात हमारे टेस्ट के स्कोर्स जो हैं, जो वो कंपेयर किए जाते हैं किसी क्राइटेरियन से, कोई कसौटी वाला टेस्ट रहता है, उसके स्कोर से यदि कंपेयर किए गए और उनमें अधिकतम समानता पाई गई, तो वह हमारी क्राइटेरियन कसौटी वैधता होती है. कसौटी वैधता के अंतर्गत, क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंतर्गत, पहला है प्रोडक्टिव वैलिडिटी. It is a test when a test is correlated against the criterion to be made available in the future. यदि हमारा जो टेस्ट है प्रोडक्टिव है, वो हमने कोरिलेट किया क्राइटेरियन टेस्ट से, और कौन से टाइम जो फ्यूचर में अवेलेबल होगा. फ्यूचर में हमारा आज के टेस्ट के मार्क्स है और हम उसे कहें कि हम जो है एक क्राइटेरियन डेवलप करेंगे और उससे अपने उसको करेंगे, तो कोरिलेट करेंगे, तो इसका मतलब है ये हमारी प्रोडक्टिव वैलिडिटी मानी जाएगी. इसमें टाइम का महत्व होता है. कॉन्करेंट वैलिडिटी. कॉन्करेंट वैलिडिटी का मतलब है हमने जब इस प्रकार अपनी टेस्ट को वर्तमान में ही जो टेस्ट अवेलेबल है, जो क्राइटेरियन अवेलेबल है हमारा, उसी से जब उसको हमने कंपेयर किया और हमारे कंपैरिजन जो है वो पूरी तरह से कोरिलेटेड पाया गया, तो हम इसे कॉन्करेंट वैलिडिटी कहते हैं. अब है कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, ऑल्सो नोन एज फैक्टोरियल वैलिडिटी एंड ट्रेट वैलिडिटी. Investigator decides, compute and construct validity only when he is fully satisfied that neither any validity or reliable criterion is available to him, or nor any universe of content entirely satisfactory and adequate to decline the quality of the test. अर्थात जब हम ये मान लेते हैं या इन्वेस्टिगेटर ये डिसाइड कर लेता है, कंप्यूट कर लेता है कि कोई भी क्राइटेरियन अवेलेबल नहीं है मेरे टेस्ट के लिए, और जो टेस्ट बनाया है वह पूरी तरीके से कंटेंट को वेरीफाई कर रहा है, कंटेंट उसमें पूरा का पूरा आ रहा है और वह सेटिस्फैक्ट्री है, एडिकेट उसमें क्वेश्चंस हैं, तो हम इसे कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी कहते हैं. There are two methods of establishing satisfactory construct validity. पहला है convergent validity, when the test correlates with its expected referent. Discriminant validity, when a test correlate poorly or not at all with the measures with which it should not
it should not because it differ from those referent or measures. This is called discriminant. जब ये मिलता नहीं है, पहले में जब ये पूरी तरह से कोरिलेट करता है हमारे किसी रेफरेंट से, और जब ये पुअरली रेफरेंट करता है तो हम इसे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं. धन्यवाद. आगे हम मिलेंगे वैलिडिटी के अन्य प्रकारों.